آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ زمین پر بیٹھ جائیں. آپ تمام احباب سے مناظر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے. جامعہ نعیمیہ میں سابق وزیر اعظم نواز شریف موجود تھے. تقریب میں نواز شریف کو جوتا مار دیا گیا ہے. اس وقت مناظر آپ کے سامنے موجود ہے. تازہ ترین خبر آپ کو پہنچا رہی ہیں. نواز شریف پر جوتا مارا گیا ہے. جامعہ نعیمیہ میں عرس کے موقع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا تھا, جہاں کچھ دیر پہلے سابق وزیر اعظم نواز شریف موجود تھے اور اس تقریب میں نواز شریف پر جوتا مارا گیا ہے. مناظر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں. افراتفری کے یہ مناظر ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف پر جوتا مارا گیا ہے. جامعہ نعیمیہ میں سابق وزیر اعظم نواز شریف موجود تھے. عرس کے موقع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا تھا, جہاں پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کو دعوت دی گئی تھی. مناظر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں. نواز شریف پر جوتا مارا گیا ہے. جامعہ نعیمیہ کے یہ مناظر ہیں اس وقت آپ کے سامنے, جہاں پر اس کے موقع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا تھا اور نواز شریف پر جوتا مارا گیا ہے. مناظر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں. افراتفری کے یہ مناظر ہیں. نواز شریف سٹیج پر تقریر کرنے کے لیے پہنچے کے ساتھ ہی نواز شریف پر جوتا مار دیا گیا. جامعہ نعیمیہ کے یہ مناظر ہیں آپ کے سامنے. اس وقت نواز شریف تقریب سے خطاب کرنے کے لیے سٹیج پر پہنچے اور نواز شریف پر جوتا مار دیا گیا ہے. جامعہ نعیمیہ کچھ دیر پہلے سابق وزیر اعظم نواز شریف پہنچے, وہاں انہوں نے تقریب سے خطاب کرنے کے لیے نواز شریف سٹیج پر پہنچے کے ساتھ ہی نواز شریف پر جوتا مار دیا گیا ہے. افراتفری کے مناظر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف پر جوتا مارا گیا ہے. نواز شریف کو جامعہ نعیمیہ عرس کے موقع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا تھا, وہاں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو دعوت دی گئی. کچھ دیر پہلے سابق وزیر اعظم نواز شریف جامعہ نعیمیہ پہنچے, وہاں پر تقریب سے خطاب کرنے کے لیے سٹیج پر پہنچے ہی تھے کہ نواز شریف پر جوتا مار دیا گیا ہے. مناظر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں. نواز شریف پر جوتا مارا گیا ہے. افراتفری کے یہ مناظر ہیں. اس وقت نواز شریف تقریب سے خطاب کرنے کے لیے سٹیج پر پہنچے کے ساتھ ہی نواز شریف پر جوتا مار دیا گیا. جامعہ نعیمیہ کے مناظر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں, جہاں اس کے موقع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا. کچھ دیر پہلے سابق وزیر اعظم نواز شریف جامعہ نعیمیہ پہنچے, جہاں پر وہ تقریب سے خطاب کرنے کے لیے سٹیج پر پہنچے ہی تھے کہ نواز شریف پر جوتا مار دیا گیا. میرے بزرگوں کا بہت قریبی تعلق تھا. میرے والد صاحب کا بہت قریبی تعلق تھا. میرے تایا جان کا بہت قریبی تعلق تھا اور میرا اپنا بہت قریبی تعلق تھا. اور انہی کی سائے میں ہم جوان ہوئے, انہی کے سائے میں ہماری پرورش ہوئی. اور پھر مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ وہاں پر جو جامعہ نعیمیہ تھا چوک دالگرہ میں, چھٹیوں میں قرآن پاک پڑھنے جایا کرتے تھے اور وہیں سے ہم نے قرآن کی تعلیم بھی حاصل کی مفتی صاحب کے زیر سایہ. اور وہ اتنی شفقت فرماتے تھے ہمارے اوپر کہ وہ بہت پیار سے ہمارے ساتھ پیش آتے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, آپ ذرا خاموشی اختیار کریں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ ادارہ انہوں نے خود اپنی ذاتی کوششوں سے بنایا, چوک دالگرہ کی بات کر رہا ہوں, اور پھر یہ جو یہاں پر جامعہ نعیمیہ یہاں گڑی چوک میں جو بنایا ہے, میری آنکھوں کے سامنے ایک ایک اینٹ رکھ کے انہوں نے بنایا ہے. اور میں چھوٹا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ پہلے کچھ ایک حصہ بنا, اس کے بعد پھر جب کوئی ذرائع ختم ہو گئے تو پھر تھوڑی بریک آ گئی, پھر اس کے بعد دوسرا حصہ بنایا, پھر تیسرا بنایا, اور پھر اس کے بعد مکمل کیا. تو یہ اس زمانے میں بہت خوبصورت ادارہ بنا تھا جو جہاں ہم آج موجود ہیں. اور یہاں پہ بے حساب بچے جو ہیں, وہ بے شمار بچے جو ہیں وہ فیض حاصل کرتے ہیں, قرآن کریم کی تعلیم ان کو حاصل ہوتی ہے. اور یہاں پر ماشاءاللہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ماحول یہاں پہ طلباء کرام کے اندر, وہ ایک مثالی ہے. اور مجھے بھی آ کر یہاں بڑی خوشی ہوتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جب بھی میں یہاں پر آتا ہوں کہ یہاں مفتی صاحب, مفتی محمد نعیمی صاحب یہیں کہیں پھر رہے ہیں اور یہیں کہیں موجود ہیں, اور وہ یادیں زندگی بھر میرے ساتھ رہیں گی. اور جو یادیں چوک دالگرہ میں تھی جامعہ نعیمیہ کی مسجد میں, وہ بھی زندگی بھر ساتھ چل رہی ہیں اور یہ بھی زندگی بھر ساتھ چلتی رہیں گی. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور
फलने फूलने का मौका नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इस इदारे में और बरकत अता फरमाए और यहाँ पे तालीम हासिल करने वालों को भी बरकत अता फरमाए। हम सब मिलकर इंशाअल्लाह पाकिस्तान को एक अच्छा मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें मैं समझता हूँ कि चाहे वो दीनी तबका है, चाहे वो सियासी तबका है, चाहे वो समाजी तबका है, हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। और मुझे बड़ी तवक्कुआत है इंशाअल्लाह कि आपकी तरफ से हमें भरपूर ताउन मिलेगा। मैं डॉक्टर राग़िब हुसैन साहब का ख़ास तौर पे मशकूर हूँ कि वो बड़ी मोहब्बत से मुझे बुलाते हैं, बड़ी मोहब्बत से मुझे यहाँ दावत देते हैं। अल्लाह ताला उनको और खैर बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला उनके दादा जान को मुफ्ती मोहम्मद हसन नईमी साहब को जो है वो बेहतरीन मकाम दे जन्नत में, उनके दर्जात को बुलंद करे और उनको खैर व बरकत से हमकिनार फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जामिया नईमिया जिंदाबाद। जामिया नईमिया में सेमिनार के मनाजिर आपके सामने मौजूद हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे कि उन पर जूता मारा गया है। मनाजिर इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं, अफरा तफरी के ये मनाजिर हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर जूता मारा गया है। जामिया नईमिया में सेमिनार का इनेकाद किया गया था जहां साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ स्टेज पर तकरीब से खिताब करने के लिए पहुंचे कि वहां पर उन पर जूता फेंका गया। अफरा तफरी के मनासिर इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर जूता फेंका गया है। कुछ देर पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जामिया नईमिया में उर्स के मौके पर सेमिनार से खिताब करने के लिए स्टेज पर पहुंचे कि उन पर किसी ने जूता फेंक दिया। खिताब के दौरान के मनाजिर इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर जूता फेंका गया है। कुछ देर पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जाती उम्रा से जामिया नईमिया के लिए रवाना हुए थे और जामिया नईमिया पहुंचते ही उन्होंने स्टेज पर तकरीब से खिताब करना शुरू किया कि खिताब के दौरान ही नवाज शरीफ पर जूता फेंक दिया गया है। आपको बताते चलें, अपडेट करते चलें आपको इस सेमिनार के हवाले से। जामिया नईमिया के ये सेमिनार के मनाजिर हैं आपके सामने कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर जूता फेंका गया है। मनाजिर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। वकार घुमन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। वकार घुमन, बताइएगा ये क्या मामला है और क्या सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजामात मौजूद नहीं थे कि ये वाकया पेश आ गया? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर नवाज शरीफ की जामिया नईमिया जो कि मजहबी इनकी दरसगाह भी रही है और हर साल जब भी मुफ्ती सरफराज नईमी और मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी की यहाँ पर बरसी मनाई जाती है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बजाते खुद इस महफिल में तशरीफ लाते हैं। और आज भी जब वो डायस पर पहुंचे तो इस मौका पर एक शख्स की जानिब से उनके ऊपर जूता फेंका गया कि जो कि इनको कंधे से टकराकर नीचे जा गिरा और उसके बाद उस शख्स को इंतजामिया ने पकड़ लिया। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम से जूता फेंकने वाला शख्स बिल्कुल डायस के बिल्कुल पास मौजूद था। इस तकरीब में उलमाए कराम की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद थे, लेकिन डायस के बिल्कुल पास जो शख्स मौजूद था उसने उनके ऊपर जूता फेंक दिया जो कि उनके कंधे को लगा। नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ साथ यहाँ पर हिसाब किया और हिसाब करने के बाद वो वहां से रवाना हो गए। अपने हिसाब में उनका ये कहना था कि राग़िब नईमी का वो मशहूर हैं कि उन्होंने हर साल इनको अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं और उनका ये भी कहना था कि वो इसी दरसगाह में मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी से जो मजहबी तालीम है, दीनी तालीम है, वो भी हासिल करते रहे हैं और यहाँ पर जब भी वो आते हैं उनकी वो यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। नवाज शरीफ जब स्टेज पर पहुंचे खिताब करने के लिए इस मौके पर बिल्कुल डायस के करीब जो शख्स खड़ा था उसने मियां नवाज शरीफ पर जूता फेंक दिया जो कि माइक को टकराते हुए उनके कंधे से लगा और नीचे जा गया। जिसके बाद यहाँ पर मौजूद जो लोग थे जूता फेंकने वाले शख्स को पकड़ लिया और जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने उस शख्स को हिरासत भी ले लिया। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम थे, लेकिन स्टेज के बिल्कुल पास जो शख्स मौजूद था उसने ये जूता उन पर फेंका जो कि उनके कंधे को नीचे जा गिरा। जी वकार गुमन, मजीद बताइएगा कि ये शख्स कौन था जिसने तकरीब के दौरान नवाज शरीफ पर जूता फेंका? बिल्कुल स्क्रीन पे ये शख्स नजर आ रहा है। जूता फेंकने के बाद इसने खुशी का भी इजहार किया, जिसके बाद यहाँ पे लोग जो इंतजामिया के लोग थे उन लोगों ने तुरंत टोपी वाले शख्स को
दबोच लिया और इसके बाद इसको जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं वो अपने साथ ले गए हैं। नवाज शरीफ के ऊपर जब जूता फेंका गया तो वो बुखला भी गए, लेकिन इसके बाद जो वहाँ पर इंतजामिया थी उन्होंने मामलात को दुरुस्त अंदाज में हैंडल किया। बदनज़मी पैदा हुई, लेकिन नवाज शरीफ ने इसके बावजूद मुख्तसर का हिताब किया और इस इदारे के साथ जो उनकी यादें थी उसका भी उन्होंने इजहार किया। यहाँ पर उलमा इकराम की बड़ी तादाद भी मौजूद थी और इसके अलावा लाहौर की जो सियासी शख्सियात है, मेयर लाहौर भी यहाँ पर मौजूद थे, उलमा इकराम और सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद थे। नवाज शरीफ जब भी जामिया नईमिया का कोई प्रोग्राम होता है तो इसमें लाजमी आते हैं, क्योंकि ये उनकी जो मजहबी दस्तगाह थी यहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की थी और इसका आज उन्होंने अपने किताब में भी इसका जिक्र किया। उनका कहना था कि मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी से उन्होंने जो इस्लामी तालीम हासिल की थी, मस्जिद में जब वो पढ़ने आते थे वो आज भी मनाजर उनके सामने आते हैं कि उन्होंने यहाँ से तालीम हासिल की। जूता फेंकने वाले शख्स को जो यहाँ पर इंतजामिया थी उन्होंने अपने हिरासत में ले लिया, जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे थे उसको साथ ले गए। जूता फेंकने वाले शख्स ने जूता फेंकने के बाद खुशी का भी इजहार किया और इसके बाद इंतजामिया ने इसको पकड़ लिया। जूता फेंकने वाला जो शख्स था बिल्कुल डाइस के बिल्कुल करीब था। किसी से जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने नवाज शरीफ को अपने हिसार में तो लिया था, लेकिन डाइस के बिल्कुल करीब होने की वजह से जूता फेंकने वाला शख्स जूता फेंकने में कामयाब हो गया, जो कि माइक को लगते हुए उनके कंधे को लगा और नीचे जा गिरा। इसके बाद नवाज शरीफ ने बड़ा मुख्तसर हिताब किया और यहाँ से वो रवाना हो गए और यहाँ पर जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे थे उन्होंने उस शख्स को जिसने जूता फेंके उसको भी पकड़ लिया है। जी वकार घुमन, बताइएगा कि उस शख्स को तो गिरफ्तार कर लिया गया, अब सिक्योरिटी एहलकार और पुलिस की जानिब से उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, अभी तो उस शख्स को जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो इंतजामिया के लोग हैं, उन्होंने अपने साथ ले गए और यकीनन इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि साबिक वजीर आजम जब यहाँ पर खिताब करने आए तो इस शख्स की जानिब से उनके ऊपर जूता फेंका गया जो कि उनके कंधे को लगा और इसके बाद उलमा कराम और जो यहाँ पर जो मुकामी जो सिक्योरिटी थी और इसके अलावा नवाज शरीफ के जो रिकॉर्ड में लोग थे उन लोगों ने उस शख्स को पकड़ लिया और इस वक्त उसको नामालूम मुकाम पर ले जाया गया है। नवाज शरीफ मुझसे खिताब करने के बाद यहाँ से रवाना हो चुके हैं। जी बिल्कुल, जूता फेंकने वाले शख्स को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। वकार घुमन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे इस हवाले से मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। मनाजिर इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। जूता फेंकने वाले ने जूता फेंकने के बाद खुशी का इजहार भी किया है। शाहिद सिप्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा इस मामले के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी और इसके साथ साथ शहीद पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद सरफराज नईमी की याद है 20वां सालाना सेमिनार और उसकी तकरीब हुई, जिसमें कायदे मुस्लिम लीग नवाज या नवाज शरीफ जो है वो बतौर मेहमान खुशी शरीक हुए थे। तो जैसे उनका खिताब शुरू हुआ तो एक जो शहरी जिसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि अभी तक वो जामिया नईमिया का स्टूडेंट ही है जिसने कायदे मुस्लिम लीग नवाज और साबिक वज़ीर पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ की तरफ जूता जो है फेंका है। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा शख्स जो है वो स्टेज पर पहुंचा है जिसने नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे जो है यहाँ से बुलंद किए हैं। और जैसे ही वो शख्स स्टेज के पास पहुंचा तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ के जो सिक्योरिटी एहलकार थे, क्योंकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, उन्होंने फौरी तौर पर यहाँ से पकड़ा तो उसको अभी जामिया नईमिया के इंतजामिया के ही हवाले किया गया है। अभी उसको किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे या पुलिस के हवाले नहीं किया गया। इब्तदाई तौर पर जामिया नईमिया की जो इंतजामिया है वो उससे इंटेरोगेशन करेगी कि आया कि ये वाकया किस तरह रूनुमा हुआ, ये जूता क्यों फेंका गया, और उसके बाद अगर उसमें कोई बात सामने आती तो उसके बाद उसको हवाला पुलिस किया जाएगा या कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले किया जाएगा। जी शाहिद सिप्रा, मजीद बताइएगा कि सख्त सिक्योरिटी हिसार में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इस तकरीब में ले जाया गया, तो क्या तकरीब के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम मौजूद नहीं थे? जी देखिए, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। गढ़ी शाह चौक से लेकर जामिया नईमिया तक एक साइड जो है रोड उसको मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। जामिया नईमिया के एतराब में जितने भी जैली रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर सील किया गया था और आम पब्लिक के लिए दाखिली रास्ता मुख्तस किया गया। उसके अलावा जो VIP मूवमेंट थी जिसमें बिलखसूस मियां नवाज शरीफ की आमद का वो एक सेपरेट रास्ता मुख्तस किया गया था, लेकिन क्योंकि स्टेज मौजूद था और यहाँ पे स्टूडेंट भी मौजूद थे, आम शहरी भी और मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन भी मौजूद थे जिनको उर्स और सेमिनार की तकरीबात में मदऊ किया गया था और ज्यादातर तादाद जो है वो जामिया नईमिया के स्टूडेंट की ही थी और तलबा ही थे जो इस सेमिनार में शरीक थे। और यही अभी तक इब्तदाई इतलात यही आई है कि जो जूता फेंका गया है वो जामिया नईमिया में ही ज़ेर तालीम तालिब इल्म है जिसने ये जूता फेंका और उसके बाद दूसरा तालिब इल्म जो है वो स्टेज के पास पहुंचा है जिसने जो नारे हैं वो बुलंद किए, जिसमें नारा तकबीर अल्लाहु अकबर और नारे रिसालत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे बुलंद किए हैं। जैसे ही उस शख्स की जानिब से ये नारा बुलंद किया गया और जूता फेंका गया तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ के जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने फौरी तौर पर उस शख्स को यहाँ से पकड़ा है और जामिया नईमिया की इंतजामिया के हवाले किया है।
इस वक्त वो दोनों तलबा जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, वो जामिया नईमिया की कस्टडी में है। जामिया नईमिया की इंतजामिया उनसे इंटरोगेशन करेगी, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि आया कि इनको कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले करना है या पुलिस के हवाले करके क्या कार्रवाई अमल में लानी है। जी बिल्कुल, नामालूम मकाम पर उस शख्स को मुंतकिल कर दिया गया है। जामिया नईमिया के मनासिर हैं। सेमिनार के दौरान साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर जूता फेंक दिया गया। नवाज शरीफ डायस पर खिताब के लिए पहुंचे तो एक शख्स ने जूता फेंक दिया। सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से उस शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक ज़ेर तालीम तालिब इल्म है जामिया नईमिया का, जिसने नवाज शरीफ पर जूता फेंका है, जबकि दूसरी जानिब गेट से निकलते हुए तालिब इल्म ही मौजूद था जिसने बावाज़ बुलंद नारे लगाने शुरू कर दिए। इस वक्त जामिया नईमिया के मनाज़िर आपके सामने मौजूद हैं। सेमिनार के दौरान साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर जूता फेंक दिया गया। नवाज शरीफ डायस पर खिताब के लिए पहुंचे तो एक शख्स ने उन पर जूता फेंक दिया, जबकि इस मौका पर सिक्योरिटी एहलकारों ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया है और नामालूम मकाम पर मुंतकिल भी कर दिया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक जामिया नईमिया का ज़ेर तालीम तालिब इल्म है जिसने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर जूता फेंका है, जबकि दूसरी जानिब गेट से निकलते हुए एक और तालिब इल्म वहां पर मौजूद था, वो भी जामिया नईमिया का ही ज़ेर तालीम तालिब इल्म था जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वकार घुमन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी वकार, बताइएगा इस हवाले से। जी, ये चंद रोज में तीसरा बड़ा वाक़या है। आज से कुछ दिन कबल नारोवाल में वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल पर भी एक शख्स ने जूता फेंका। कल सियालकोट में वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंकी गई है। आज तीसरे दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो इंतहाई सीनियर रहनुमा है, उनके कायद हैं मियां नवाज शरीफ, आज उन पर जूता फेंक दिया गया है। जामिया नईमिया में जब तकरीब के दौरान वो खिताब करने पहुंचे तो इसी जामिया नईमिया के दो तालिब इल्म जो कि बिल्कुल डायस के पास मौजूद थे, अब तक इतलात के मुताबिक उन्होंने नारे रिसालत के नारे बुलंद करते हुए नवाज शरीफ पर जूता फेंका, जो कि उनके कंधे को टकरा गया। और इसके बाद जो इंतजामिया उन्होंने दोनों जो तालिब इल्म है उनको अपने पकड़ लिया और इसकी तफ्तीश की जा रही है। तीसरा बड़ा वाक़या है ये चंद दिन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो क़यादत है उनको टारगेट किया जा रहा है। जामिया नईमिया में आज जब नवाज शरीफ मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी की जो उनकी याद में जो जलसा ऐसा इस्तेमाल किया गया तो उसमें हिसाब करने के लिए पहुंचे तो उस वक्त ये वाक़या पेश आया। और इस वक्त स्क्रीन पे जो दोनों तालिब इल्म है उनको इंतजामिया ने अपने तहवील में ले लिया और उनसे मजीद जो तफ्तीश की जा रही है। नवाज शरीफ इसके बाद मुख्तसर सा हिसाब करने के बाद वो जामिया नईमिया से चले गए। अपने हिसाब में उन्होंने जामिया नईमिया में जो उनके दिन गुजरे हैं, जो यहाँ से उन्होंने मजहबी तालीम हासिल किया, इस बारे में भी मियां नवाज शरीफ ने बताया। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी से जब वो यहाँ पर पढ़ने आते थे वो तमाम वाक़यात आज भी उनके जहन में है। और तकरीब के दौरान जब नवाज शरीफ खिताब करने पहुंचे तो उस वक्त ये वाक़या पेश आया जब एक तालिब इल्म ने उन पर जूता उछाल दिया। जी वकार घुमन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे। जामिया नईमिया में सेमिनार के दौरान साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर जूता फेंक दिया गया है। नवाज शरीफ डायस पर खिताब के लिए पहुंचे तो एक शख्स ने उन पर जूता फेंक दिया। मौका पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक जामिया नईमिया का वो शख्स ज़ेर तालीम तालिब इल्म था जिसने नवाज शरीफ पर जूता फेंका, जबकि दूसरी जानिब गेट से निकलते हुए एक और तालिब इल्म ने नवाज शरीफ के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। शाहिद सिप्रा से मजीद जानते हैं। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा क्या नवाज शरीफ के साथ सियासी कायदीन या मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं में से कोई मौजूद नहीं था इस सेमिनार में? जी देखें, बिल्कुल ये मुस्लिम लीग नवाज के कायदीन नवाज शरीफ की थे, सेनेटर परवेज रशीद थे, बड़ी तादाद में मौजूद थे और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। जैसे मैंने पहले बताया कि चूंकि स्टेज बनाया गया था और नवाज शरीफ कमेटी के जो यहाँ पे जो मेहमान बुलाए गए थे तो वो स्टेज पर मौजूद थे और सामने इतना भी पिंडाल का जो इस्तेमाल सजाया गया था उसमें जामिया नईमिया के तलबा ही बड़ी तादाद में मौजूद थे, मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन भी मौजूद थे। लेकिन जैसे ही मियां नवाज शरीफ के हैं उनके खिताब हुआ वो स्टेज पर खिताब करने के लिए तो अचानक एक शख्स उनकी तरफ जूता फेंका और दूसरा शख्स जो है वो जी शाहिद सिप्रा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे। अब तक की इत्तलात के मुताबिक जामिया नईमिया का ज़ेर तालीम तालिब इल्म था जिसने नवाज शरीफ पर जूता फेंका है, जबकि दूसरी जानिब गेट से निकलते हुए दूसरे तालिब इल्म ने नवाज शरीफ के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और बावाज बुलंद नारे भी लगाए हैं। जामिया नईमिया में सेमिनार के दौरान साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर जूता फेंक दिया गया है। वकार घुमन से मजीद जानते हैं। जी वकार घुमन, बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां नवाज शरीफ आज जब जामिया नईमिया में मुनक्कद एक तकरीब में खिताब करने के लिए पहुंचे तो डायस के बिल्कुल पास जामिया नईमिया के ही तालिब इल्म ने उन पर जूता फेंक दिया और इसके बाद एक शख्स जो बिल्कुल डायस के करीब खड़ा था उसने इस खुशी में झूमना शुरू कर दिया, जिसके बाद
पुलिस इंतजामिया और जामिया नईमिया की इंतजामिया ने दोनों अशखास को अपनी तहवील में ले लिया है। और ये वाक़या उस वक्त पेश है जब नवाज शरीफ जामिया नईमिया में खिताब करने के लिए पहुंचे थे तो एक शख्स की जानिब से उनके ऊपर जूता फेंका गया जो कि उनके कंधे से टकरा गया। और इसके बाद नवाज शरीफ ने बड़ा मुस्तिर खिताब किया। और जो जब नवाज शरीफ जब भी जामिया नईमिया में आते हैं और यहाँ पर बड़ा तफसीलन उनका हिसाब होता है, लेकिन इस वाक़या के बाद उन्होंने बड़ा मुस्तिर खिताब किया और जामिया नईमिया में जो उनके दिन गुजरे थे, जो उन्होंने यहाँ से मजहबी तालीम हासिल की थी, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी थे, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। और मुफ्ती का हिसाब करने के बाद जब वो वापस जाने लगे तो गेट पर दोबारा जो वहाँ पर कुछ तालिब इल्म मौजूद थे जामिया नईमिया के, उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दी। और उन नारे लगाने वालों को भी जो जामिया नईमिया की इंतजामिया ने उनको भी पकड़ लिया है। और अब तक की इतलात के मुताबिक जूता फेंकने वाले शख्स और जो नारे लगाने वाले शख्स हैं उनको पकड़ लिया गया है। नवाज शरीफ बड़ा मुस्तिर हिसाब करने के बाद जामिया नईमिया से वापस रवाना हो चुके हैं। और लेकिन जूता फेंकने वाले शख्स को जो यहाँ पर मुकामी सिक्योरिटी है जिसमें जामिया नईमिया के लोग भी शामिल हैं, पुलिस के लोग भी शामिल हैं, उन्होंने इसको पकड़ लिया और जूता मारने वाले शख्स को बाद में पीटा भी गया। जी वकार घुमन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अली अकबर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं। जी अली अकबर, आज जामिया नईमिया में सेमिनार के दौरान साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर जूता फेंक दिया गया है। जामिया नईमिया इंतजामिया की जानिब से इस काबिल मुज़म्मत वाक़े के खिलाफ क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है और माशरे में जो बढ़ता हुआ डिप्रेशन है और अदम बर्दाश्त की जो रवायत चल चुकी है, ये उसी का जो है वो उसी की पेशकदमी है और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इस किस्म की हरकत जो है वो किसी भी मौजूद माशरे में नहीं की जा सकती। जामिया नईमिया की जानिब से जो है इसकी इंतहाई मजम्मत की गई है और वो ये देख रहे हैं कि आया वो उसके स्टूडेंट थे या बाहर से कोई जो है वो तकरीब में शिरकत के लिए आया हुआ था। लेकिन कोई भी वाक़या हो, मुयसर हो, जैसे ख्वाजा आसिफ के साथ जो है वो सैयला मैटर हुआ है और नारोवाल में जो है वो एहसन इकबाल के साथ भी इसी तरह का जो है एक वाक़या है। ये दिन ब दिन देखा जा रहा है कि पब्लिक गैदरिंग्स में लोगों में अदम बर्दाश्त है और उसकी वजह से जो है वो इस किस्म का रिएक्शन आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए। फौरी तौर पे जो है इस पे बैठ के जो है तमाम सियासी रहनुमा और तमाम जो बड़े सियासतदान हैं उनको एक इस पर बैठ के लाए अमल बनाना चाहिए और अपने अपने कारकुनान, अगरचा अगर किसी का ये जाती फेल है तो भी ये गलत है और इस पर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं और माशरे के तमाम जो संजीदा हल्के हैं उनको संजीदगी से इस पर गौर करना चाहिए और इस बात पर जो है वो एक बाकायदा लाए अमल बनाना चाहिए और लोगों को मना करना चाहिए कि इस किस्म की हरकत ना करें। हर किसी का अपना एक जाती से नक्स होता है और किसी को भी उसको मजरू करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जी अली अकबर, मजीद बताइएगा कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक जामिया नईमिया के खारजी रास्ते में एक और तालिब इल्म भी मौजूद था, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? क्या उसे भी गिरफ्तार किया गया है? जिस सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जो है इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और ये तहकीकात की जा रही है कि आया इन्होंने ये जाती जो है इनका ये रद्द अमल था या किसी के कहने पर किया है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और जिस पर भी उनको शक था ये दोनों ही स्टूडेंट्स ने इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके साथ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उसके बाद ही कोई वाज़ेह तौर पर पुलिस का मौक़िफ़ आएगा कि ये कौन लोग थे और किसके कहने पर इन्होंने किया, आया इनका कोई जाती ये फेल था या किसी पार्टी से इनका कोई ताल्लुक था। जी अली अकबर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे। शाहिद सिपरा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं। जी शाहिद सिपरा, बताइएगा इस हवाले से जामिया नईमिया की जानिब से इस वाक़े के खिलाफ क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी देखें, उनकी तरफ से अभी तक कोई भी मौक़िफ़ सामने आया है क्योंकि ये अचानक वाक़या जो है रूनमा हुआ है। एक तालिब इल्म जो कि 3 साल कबल जो बताया जा रहा है कि जामिया नईमिया में ज़ेर तालीम था लेकिन यहाँ से फारिग तहसील हुआ, लेकिन आज जब ये एक उर्स और सेमिनार की तकरीब थी उसमें दोबारा पहुंचा और उस शख्स का और तालिब इल्म का नाम जो है वो मुनव्वर बताया जा रहा है। वो 3 साल कबल जो है जामिया नईमिया में ज़ेर तालीम था लेकिन उसके बाद यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद किसी और जगह पर चला गया, लेकिन आज उसने इस तकरीब में शिरकत करके मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां नवाज शरीफ जब आप स्टेज पर पहुंचे अपना खिताब करने के लिए तो उन पर जूता फेंका और उसके बाद जो मियां नवाज शरीफ की जाती सिक्योरिटी थी उसने उनकी जानिब से उस शख्स को हिरासत में लेने के बाद जामिया नईमिया की इंतजामिया के हवाले किया गया है। अभी वो तालिब इल्म मुनव्वर जो है वो जामिया नईमिया की इंतजामिया के ही कस्टडी में है, अभी तक पुलिस के हवाले नहीं किया गया, कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले उनको नहीं किया गया। इब्तदाई तौर पर जामिया नईमिया का चूंकि स्टूडेंट बताया जा रहा है कि वो माजी में यहाँ पे ज़ेर तालीम था तो उसकी तहकीकात की जाएंगी, तफ्तीश की जाएगी क्या है कि इस शख्स की जानिब से ये जूता क्यों फेंका गया, इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है, जिसका फैसला होना अभी बाकी है। जैसे ही जामिया नईमिया इंतजामिया की जानिब से इंटेरोगेशन या तहकीकात मुकम्मल कर ली जाती हैं
उसके बाद फैसला होगा कि मुनव्वर नामी जो तालिब इल्म जिसने मियां नवाज शरीफ पर आज जूता फेंका है उसको कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले किया जाता है या पुलिस के हवाले करके उससे मजीद क्या तहकीकात की जाती हैं या क्या मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। एक तरफ ये वाक़या रूनुमा हुआ स्टेज पर, दूसरी जानिब जब मियां नवाज शरीफ अपना खिताब खत्म करने के बाद VIP रास्ते की तरफ रवाना हुए और वहां से जाने की कोशिश की तो एक दूसरा शख्स जो है वो भी वहां पे पहुंचा। उसकी जाने से भी नारे जो है वो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया गया, लेकिन चूंकि वहां पे मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन भी मौजूद थे, जामिया नईमिया के तालिब इल्म भी मौजूद थे, तो उनकी जानिब से उस शख्स को वहां पे रोका गया। उसके खिलाफ कोई अभी तक कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, लेकिन वो शख्स जिसने जूता फेंका और स्टेज तक पहुंचा है उसको हिरासत में लिया गया, उससे तहकीकात जी। शाहिद सिप्रा आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे इस हवाले से मजीद अपडेट्स भी लेंगे। सीनियर तज्जियाकार नसीम ज़हरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी नसीम ज़हरा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस वाक़े के हवाले से आप क्या कहेंगी? अदम बर्दाश्त है, अदम तहफ़्फ़ुज़ है इस मुआशरे में, क्या कहेंगी आप इस हवाले से? जी मेरा ख्याल है कि अल्लाह का शुक्र है कि ये मुआशरा उस नहज पे नहीं पहुंचा कि हर एक उठा के जूता मारे, लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि इस चीज़ को ये आज एक वाक़या हुआ और कल हमने देखा कि फॉरेन मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंकी गई। ये जो अदम बर्दाश्त या पॉलिटिकल स्टंट या जो भी एक स्टंट जो है तरीका जो कि किरदार से और हर चीज़ से गिरा हुआ है, इसको इसकी सख्त मजम्मत होनी चाहिए और अच्छा कर रहे हैं आप कि आपने चीज़ों को उठाया है। ये इससे अगर देखिए, अगर आपको किसी सियासी तौर पे आप किसी से इत्तेफाक नहीं करते, आप उनके नफी करना चाहते, ये तरीका नहीं होता है, इससे कुछ भी हासिल नहीं। इससे बड़ी अच्छी बात है कि मीडिया इसकी जगह जगह मजम्मत कर रहा है और जो लोग इस पर बात करें, मजम्मत कर रहे हैं। ये ना सियासत का तरीका है, ना ये कोई मुआशरे को बदलने का, ये तो बद तहजीबी फैलाने का, अदम बर्दाश्त फैलाने का तरीका है। और जहाँ तक सिक्योरिटी और इसकी सख्त मजम्मत हम करते हैं और बड़ी अच्छी बात है। हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब, जिनको वैसे अमूमन बड़ा गुस्सा आ जाता है, इसके बाद इन्होंने अपने बड़े तहम्मुल मिजाजी से इन्होंने अपना जो तकरीर की छोटी सी और करके चले गए। ये जो जिसने भी किया है इसकी मजम्मत करनी चाहिए। आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा था सबसे पहले कसूरी साहब पर स्याही फेंकी गई थी वकला की तरफ से, क्योंकि वो वकला के जो उस वक्त उनका मौक़िफ़ था उससे अलग उनका मौक़िफ़ था। तो ये बातें बड़ी गलत हैं। उस वक्त उसको भी कंडेम किया था सबने और ये बड़ी अच्छी बात है कि इसको कंडेम किया जा रहा है। सिक्योरिटी के हवाले से देखिएगा, मालूम नहीं कि ये शख्स जो हैं ये उधर ही के मदरसे के थे या कहीं और से आए थे। अगर मदरसे के थे, अब मुझे बताएं कि जूता पहन के कोई, हम सब किसी भी जाते हैं किसी भी फंक्शन पर तो जूता तो पहन कर जाते हैं। अब क्योंकि ये इतनी एक गैर मुतवक्के हरकत है, इतनी गिरी हुई हरकत है कि इससे तवक्को कोई नहीं करता, तो इसलिए अब ये तो नहीं कर सकते थे वो कहते जूते उतार के आप जाएं। अगर ये इदारे का ही शख्स था और उसने ये हरकत की है तो उसकी ज़हनी फतूर था, उसमें आप इदारे का ये नहीं कह सकते कि इदारे ने वहाँ सिक्योरिटी नहीं फराहम की। कोई खुदा न खास्ता कोई डंडा या कोई बंदूक लेके जाता, फिर आप कहते कि जी ये इदारे ने सिक्योरिटी का ख्याल नहीं किया। लेकिन जूता पहन के तो आपको मालूम है हर जगह हम जूता पहन के जाते हैं हर फंक्शन पे। तो ये मेरा ख्याल है कि जो जैसे मैंने कहा ज़हनी फतूर होते हैं लोग, पता नहीं क्यों क्या हरकत करते हैं, लेकिन मुआशरे को उस चीज़ की मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि मजम्मत सबसे पहला एक कदम होता है इस तरह की चीज़ों को रोकने का। जी नसीम ज़हरा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सुहेल बड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सुहेल बड़ाइश, बताइएगा इस हवाले से ये वाक़या पेश आया है जामिया नईमिया में, सेमिनार के दौरान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर जूता फेंक दिया गया है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, मैं वहाँ मौजूद था, मैंने मियां नवाज शरीफ साहब से पहले मैंने तकरीर की और मैंने इस बात पर जोर दिया कि दूर रस फैसले होने चाहिए और इंतहा पसंदाना पॉलिसियों से दूर होना चाहिए। जब मियां साहब आए स्टेज पर और अभी नारे लग रहे थे और अभी उन्होंने तकरीर शुरू नहीं की थी कि स्टेज के सामने एक लड़का दाएं तरफ से और एक बाएं तरफ से आया और उन्होंने पहले एक ने जूता फेंका और फिर दूसरी साइड से दूसरे ने जूता फेंका और साथ ही उन्होंने जब लोगों ने उनको पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने लब्बैक लब्बैक के नारे लगाए और जिसके बाद सारा मजमा जो था उसमें पीछे बैठे जो नौजवान थे उन्होंने भी लब्बैक लब्बैक के नारे लगाए, जिससे ऐसा जाहिर हुआ कि नौजवानों में मौलाना खादिम रिजवी साहब की तहरीक लब्बैक का काफ़ी असर मौजूद है। खासकर अहले सुन्नत के जो
उलमा और तलबा हैं, और ये लगता था कि उसी तहरीक लबैक का मुतासर ये दोनों अफराद थे जिन्होंने जूते फेंके। और उसके बाद जब ये वाक़या हो गया तो थोड़ी देर तक एक इंतशार और एक गड़बड़ की सी सूरत हाल रही, लेकिन मियां नवाज शरीफ वहीं स्टेज पर खड़े रहे, डायस पर खड़े रहे, और फिर उन्होंने एक मुख्तसर तकरीर की और उसके बाद शुक्रिया अदा कर जामिया नईमिया की इंतजामिया का वो वहाँ से रुखसत हो गए। जी सुहेल वड़ैच, मजीद बताइएगा कि इस तरह के वाक़यात अमूमन देखने में आते हैं, क्या सियासी ग्रजेस निकाले जाते हैं, पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन निकाली जाती है नौजवान नस्ल की जानिब से, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, ये इस ट्रेंड को जाहिर है कभी भी इसकी तारीफ तो नहीं की जा सकती, इसको जाहिर है इसकी मजम्मत की जानी चाहिए, लेकिन साथ ही उन अवामिल का भी खोज लगाना चाहिए कि लोग इस हद तक क्यों चले जाते हैं और वो कौन लोग होते हैं, उनका क्या पस मंजर होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये डेफिनेटली जो हमारे यहाँ खतबे नबूवत के मामले पे कई जो मजहबी तबकात हैं वो बड़े पुरजोश हैं, वो लॉन्ग मार्च कर चुके हैं, धरने दे चुके हैं, और उनके जो मुतासरीन हैं वो नून से बिलखुसूस नाराज हैं। और ये पहले भी देखने में आया था कि जब इस्लामाबाद में धरना हुआ था तो कई मुस्लिम लीग नून के लोगों के घरों पर हमले हुए थे। ये उसी वाक़े का एक नया जो समझिए कि रुख है, और मुस्लिम लीग नून को आने वाले दिनों में शायद इस परेशानी का, जहाँ वो कानूनी और सियासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये भी इस परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। और उन्हें ये हिकमत अमली बनानी चाहिए कि ये मजहबी गिरोह जो उनसे नाराज हैं, जिनको उनसे शिकायत हैं, इनका कुछ मदावा करें, इनसे मुज़ाकरात करें, उनसे बातचीत करें। जी सुहेल वड़ैच साहब, मजीद बताइएगा कि इस वाक़े के बाद, इस काबिल मुज़म्मत वाक़े के बाद सियासी जमातों का मजमूई रवैया इस वाक़े के बाद क्या होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि सारी सियासी जमातों को खतरा है। ये सिर्फ मियां नवाज शरीफ के साथ वाक़या नहीं हुआ, ये कल को किसी के साथ भी वाक़या हो सकता है। याद है कि जरदारी साहब जब नए नए उतरे थे तो उन पर भी एक जूता फेंकने का वाक़या जो है वो हुआ था बैरून मुल्क, लेकिन वो दूर ही रहा, उन तक पहुंचा नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि सब सियासी जमातें और मजहबी जमातें उनको इस रुझान की हौसला शिकनी करनी चाहिए, बल्कि जो मुल्क के अदारे हैं वो भी आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर सियासत में आपका मुखालफ आपकी बात नहीं सुनता और जवाब में जूते फेंकता है या आपको तरसियाँ ही फेंकता है, तो फिर इस मुल्क में मुख्तलिफ आरा तो नहीं रखी जा सकेंगी। फिर तो सब लोग एक ही रंग में रंगे जाएंगे और एक ही आवाज़ आएगी जो कि मुल्क के लिए अच्छी नहीं होती। मुल्क में मुख्तलिफ आवाज़ें, मुख्तलिफ सियासी जमातें, मुख्तलिफ आरा जो हैं वो रहनी चाहिए, तभी मुल्क मुल्क होता है, वगरना वो मुल्क फाशिस्ट रियासत बन जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये हाई टाइम है, इमरान खान साहब भी इसको कंडेम करें और मजहबी जमातें भी कंडेम करें और सारे एक मुश्तरका अलामिया पर साइन करें कि ऐसा वाक़या किसी के साथ भी हो वो कंडेमनेबल होगा और इसको एंडोर्स नहीं किया जाएगा। जी सुहेल वड़ैच, बताइएगा कि इस किस्म के वाक़यात, काबिल मुज़म्मत वाक़यात मजीद ना हो पाए, इस हवाले से आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो इस तरह के वाक़यात हैं उनकी रोकथाम के लिए ज़रूरी है मुआशरे में तहम्मुल, बर्दाश्त जो है उसको फ़रोग़ दिया जाए। और जो अदम बर्दाश्त है, ये अदम बर्दाश्त का वाक़या, लेकिन इसका जवाब अदम बर्दाश्त से नहीं बल्कि बर्दाश्त से देना होगा। वायलेंस का जवाब वायलेंस नहीं होता, नॉन वायलेंस होता है। तो ये जो वायलेंस के वाक़यात हैं इनका जवाब नॉन वायलेंस से देना चाहिए, हौसले से, सुकून से, उन अवामिल की तरफ देखना जैसे ये वाक़यात हुआ है। जी सुहेल वड़ैच साहब, मजीद बताइएगा कि ऐसा एक वाक़या कल भी हुआ था, स्याही फेंक दी गई थी और आज ये दूसरा वाक़या पेश आया है, साबिक़ वज़ीर आज़म पर जूता फेंका गया है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि मैं वहाँ पे मौजूद था, मेरे सामने ये वाक़या हुआ और ये दो नौजवान थे, बारिश नौजवान थे, एक दाईं तरफ से आया, एक बाईं तरफ से आया, और जो ही मियां नवाज शरीफ ने अभी तकरीर शुरू भी नहीं की थी तो एक ने दाएं तरफ से जूता फेंका और साथ ही नारा लगाया, लब्बैक लब्बैक। उसके जवाब में हर तरफ से नारे आने शुरू हो गए, लब्बैक लब्बैक। और फिर बाएं तरफ से एक नौजवान आया, बारिश, उसने भी जूता फेंका
اور جس کے بعد تقریب ظاہر رک گئی. میاں نواز شریف صاحب کئی منٹ تک رکے رہے جب تک کہ وہ لڑکے گرفتار کر کے یا پکڑ کے باہر نہیں لے جائے گئے. اس وقت تک انہوں نے تقریر شروع نہیں کی اور پھر انہوں نے بڑی مختصر جو ہے وہ تقریر کی اور وہ وہاں سے چلے گئے.